নমস্কার, বাংলা আবার থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই আরেকবার আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। শ্রী চন্দ্রচূড় ঘোষ আমাদের সঙ্গে আছেন আজকের, এবং শ্রী অনুজ ধর। তো আসুন আমরা সবাই ওনাদের স্বাগত জানাই। একটা বড় অংশ আমরা যাদের নিয়ে ডিল করছি মানে আমাদের সাপোর্ট করে, এবং খুব মানে অন্তর থেকে, হৃদয় থেকে সাপোর্ট করে, এবং তারা হয়তো মানে রিসোর্স এবং মেটেরিয়াল সাপোর্ট করতে না পারলেও অ্যাটলিস্ট মরাল সাপোর্ট আছে, সেটা দ্যাটস আ মেজরিটি। বাট দ্যার ইজ অলওয়েজ আ মাইনরিটি যারা দে আর সিনিক্যাল, এবং তাদের কাজই হচ্ছে লোকের সমালোচনা করা, বসে লোকের সমালোচনা করা। আমি এদেরকে একটাই উদাহরণ দিই, বাংলায় যেটা কাটি দেওয়া বলে। হ্যাঁ, কাটিয়ে দেওয়া এবং মানে বদনাম করার চেষ্টা করা, যেটা আরে ব্যবসা করছে, যেটা এটা 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 সুভাষ বোসের ফ্যামিলির যারা আছে এখনকার দিনে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে বলে এরা নেতাজির নামে পয়সা রোজগার করছে। আমি আপনার দর্শকদের জানিয়ে দিই, এটা করোনার আগে যখন আমাদের লাস্ট টিভি ডিবেট হয়েছিল, তখন চন্দ্র বোস অন টিভি এই অ্যাকুজিশন করেছিল যে দে আর আর্নিং মানি, মেকিং প্রফিট ইন দ্য নেম অফ নেতাজি। আমি চন্দ্র বোসকে একটাই কথা বলেছিলাম, উত্তর দিয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম আমি অন টিভি আমার 5 বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমি রিলিজ করব, তুমি যদি দেখাতে পারো আমি একটা পয়সার মানে প্রফিট করেছি নেতাজির নামে এবং আমার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ইজ এনি বেটার, আই উইল কুইট হোয়াট আই এম ডুইং। কিন্তু তুমি যদি দেখাতে না পারো, কলকাতা থেকে দিল্লি তোমাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হবে। সো অবভিয়াসলি হি শাট আপ। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ, আমি এদেরকে এক্সাম্পলটা দিই যে আমরা আপনি আমাকে অ্যাকিউজ করছেন যে আমি নেতাজির নাম করে রোজগার করছি, পয়সা করছি। আমি রিয়েলিটিতে পরে আসছি, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, ফিগারেটিভ। সুভাষচন্দ্র বোস বই লিখেছিলেন দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে। বইটা পপুলার হয়, অসম্ভব পপুলার হয়। সুভাষচন্দ্র বোস তার রয়্যালটি পান। এরপরে তো তাহলে বলতে হয় সুভাষচন্দ্র বোস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেচে পয়সা রোজগার করছে। এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে I was in a very good high paying job, কিন্তু I dropped it. আমি এক কথায় একদিনের ডিসিশনে কাজ ছেড়ে উইদাউট এনি ফিউচার প্রমিস আমি এই কাজে নামি। ফলে আমার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপ ছিল না, কোনো সাপোর্ট ছিল না। এবং যে কোনো পাবলিক কাজে লোকে পাবলিক সাপোর্ট চায়, আমিও চাই যে পাবলিক সাপোর্ট। তাছাড়া মানে থাকা খাওয়া বেঁচে থাকার এটা করতে হবে তো, ব্যবস্থাটা করতে হবে তো। তাহলে মানে বেসিক মিনিমামটা যদি আমি না পাই, সাপোর্ট না পাই পাবলিক কজের জন্য, তাহলে পাবলিক কজে আমি কাজ করব কেমন? এবং আমি শ্রোতাদের বলছি তারা যেন সাপোর্টটা কন্টিনিউ করেন এদের কাজের। চন্দ্রচূড় এবং অনুজের ওদের ওয়েবসাইট, ওদের ফেসবুকে দেখবে। जो अभी आपने सवाल पूछा ना, वो ये एलिगेशन लगा पैसे कमाने का, ये अपने आप में ही एक पूरा सेशन इस पे होना चाहिए। मैं तो फुल फ्लेज डिबेट करने का तैयार हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग वन क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, बिकॉज ये इतना लॉन्ग एंड वाइंडिंग टॉपिक है करके। मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को बोल करके आप एक्ट पास करा दो कि कोई भी आदमी जो सोसाइटी के लिए काम करता है, नेशन के लिए काम करता है, उसको कोई इनकम नहीं मिलनी चाहिए, पैसा नहीं मिलना चाहिए उसको। पहले स्टार्ट करो क्रिकेट वालों के साथ में कि इनकी सारी, ये तो कंट्री के लिए खेलते हैं, झंडा लेके जाते हैं, इनकी दुकानें पहले सब बंद करो कि कोई पैसा नहीं, जो पैसा होगा प्राइम मिनिस्टर के फंड में जाएगा। उसके बाद बंद करो सारे जर्नलिस्टों की इनकम, फौजियों की इनकम बंद करो। ये कहाँ का वाहियात किस्म की बकवास ये लोग कर रहे हैं। बिना पैसे के कौन सा काम होता दुनिया के अंदर? और आज हमारे पास में अगर पैसा होता तो 50 काम और अच्छे हम कर पाते अपने करके। वो ये इनको बेसिक्स, ये जो बकवास कर रहे हैं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम और आ रही है कि इसमें जैसे हमने जो आपने पूछा ना क्यों हमारे को लोग गाली देते हैं, हमारे को आप तो कह रहे हो बोलते नहीं है। वो गणशक्ति जो आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथपीस है कलकत्ता में, उसमें लिख करके बोला कि हमारे को कि हम लोग उसका आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंट है। मैं जब चंद्रचूड़ हम लोग पहले मैं वहाँ संघ मुख्यालय में गया था नागपुर में, तो मैंने उनको वहां जाके ये बात बोली थी कि आप लोग पूरा जीवन आप लोगों ने खपा दिया इसमें देश सेवा में, आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिला। मैं तो सर्टिफाइड एजेंट हूँ आरएसएस का, मेरे को थोड़ा पैसा पूसा दीजिए करो, पैसा नहीं मिलता मेरे को। कि आप लोग सर्टिफाइड नहीं हुए ना, आप लोगों को तो सारा जिंदगी लगा दिया आपने काम में, सर्टिफाइड, हमें तो सर्टिफाइड एजेंट आरएसएस डिले कर दिया। उसका कारण मैं बताता हूँ कि कारण क्या है वो, कि क्यों उन्होंने लोगों ने बोला है। देखिए ऐसा है कि एक हम लोग जब छोटे बड़े हो रहे थे, मैं तो नॉर्थ इंडिया दिल्ली का पैदा हुआ हूँ, नेताजी को लेकर के बहुत सारी मिथ्स इस कंट्री में है।
लोगों को बहुत से गलत आइडिया हैं उनके बारे में, वो क्या थे, राइट वालों को, लेफ्ट वालों को, दोनों को। राइट वालों को भी प्रॉब्लम है, वो हमने देख लिया करके। तो वो प्रॉब्लम उनको क्या आ रही है, जैसे राइट वाले समझते हैं कि नेताजी प्रो इस्लामिस्ट थे, उनको इस्लामिस्ट की कैटेगरी में डाल देंगे लोग, उनको एबीसीडी से बात उसकी पसंद नहीं है, लेकिन इस्लामिस्ट में डाल दें इसको। तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक हमें एक इम्प्रेशन एक क्रिएट, और मैं चाहता हूँ कि इस पे कल को खुला डिबेट हो, ताकि मैं आपको निकाल के पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि हम लोग, मैं 20 साल से, 25 साल से, आपको पता नहीं, यही काम कर रहा हूँ। एक इम्प्रेशन जो बहुत गलत लोगों ने क्रिएट किया था कि ये सारा बंगाली नेताजी का बड़ा भक्त होता है, ये हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में, ये मेरे गलत फीलिंग बचपन से थी। बहुत सारे बंगाली गांव में नेताजी क्लब, नेताजी मूर्ति, they don't matter। हाँ, they don't matter, वो कोई मैटर नहीं करता किसी को। गांव में कोई क्या सोच रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो आदमी राइटर्स बिल्डिंग में बैठा है, वो उसका कुछ रुतबा है। ये आप जिस कंट्री में बैठे हो, वो कंट्री और है। जिस कंट्री से मैं बात कर रहा हूँ, सेमी फ्यूडल सोसाइटी यहाँ पे। यहाँ गांव वाला क्या सोचता है, गांव वाले की औकात सिर्फ वोट बैंक के नाम पे है। वोट दे सकता है तो कर ले, नहीं तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, तो वो एक अलग टॉपिक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमारे को एक ये इंप्रेशन माइंड में हो गया कि ये सारे वो हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं तो 2000 से लगातार हर साल 1 या 2 बार मैं कलकत्ता बंगाल जाता हूँ। अभी फिर हम लोग फिर जा रहे हैं 22 को, फिर मैं जाऊंगा यहाँ से, हम लोग फिर वहां रहेंगे कलकत्ता में। तो ऑब्वियसली उसके अलावा मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ। आपके पास अमेरिका में आया तो वहाँ, उसके बाद मैं वहाँ बंगाली एसोसिएशन के लोगों से मिला, या फिर हमारा सब्जेक्ट बंगाली से हमारा बातचीत होती रहती है, बिकॉज नीति जी काम में तो मिलेंगे, आपके जैसे लोग मिलेंगे। थ्रू यू आई विल रीच आउट टू अदर्स एंड ऑल दैट। तो एक चीज तो मुझे ये क्लियर है, और मैं उसको बार बार ओपनली कह रहा हूँ कि 90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ लोगों ने फैला रखा है। 90% जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो नेहरू गांधी ये इस तंजीम को सपोर्ट करते हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया, लाल सलाम टाइप हो गया। और लाल सलाम आप अमेरिका में बहुत बैठे हैं बाय द वे। वहां भी मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी कि ये जो अच्छे भले इंडियन, डिसेंट इंडियंस हैं, इनको तो ग्रीन कार्ड मिलता नहीं है 15-15 साल तक जितने, लेकिन लाल सलाम है वो सारे के सारे अमेरिकन पासपोर्ट लेके बैठे। एक वहां पे साइकोलॉजी है करके। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं एक तो दिल्ली का आदमी हूँ। आप लोग की भाषा बड़ी कहते हैं ना, बंगाली सबसे मधुर भाषा होती है। हमारी यहाँ पे हरियाणवी का टच है, तो हमारी लठमार भाषा थोड़ी होती है। तो लठमार भाषा में मैं आकर के खुल्ला ये बोलता हूँ कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, और अहिंसा का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और मिनिमल का मैं लगा के अभी वो छाती में लगा घूम रहा हूँ। इसको लेकर के आपके भद्र लोग जो है मुझसे सड़े हुए हैं मुझको, क्योंकि उनको सारी जिंदगी गांधी भक्ति करते हैं बीसी रॉय के जमाने से। तो उनको ये खुंदक आती है कि ये आदमी आके, बाहर का आदमी आ गया और ये आकर के हमारे को गांधी जी के बारे में इनडायरेक्टली उनको नीचा दिखा रहा है, क्योंकि नेताजी का नाम दिया कि नेताजी की वजह से इंडिया फ्री हुआ था। अहिंसा का बेसिक कर दी, अहिंसा तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है इन लोगों का। तो जब वो आदमी को खुंदक आती है, तो बंगाल में मैंने देखा कि जो हाई सोसाइटी में किसी को गाली देना हो तो आरएसएस एजेंट बोलते हैं उसको, या उसके बारे में बोला कि पैसे कमाने के लिए कर रहा है। तो ये जो भड़ास निकल रही है, ये बेसिकली उस बात तो निकल रही कि हम वो बातें बोल रहे हैं जो इन लोगों को पसंद नहीं है। तो जब पसंद नहीं आती तो गाली देते। तो ये बेसिकली आरएसएस एजेंट बोलना, डिफेमेशन कहते हैं ना, कि टू गिव अ डॉग, बिफोर किलिंग अ डॉग गिव इट अ बैड नेम। I want to come to a specific thing. When you are in America and we spent some really good time in Boston also. That was the time when you were trying to get a signature comparison and verification of Netaji, Netaji before this so-called disappearance and after जो गुमनानी बाबा और भगवान जी का जो signature, उस समय one of the best signature experts confirmed that both the signatures are same. Now after that, so much more information you have brought out, and the new book, the latest book has a lot of such information. तो इसके बारे में थोड़ा सा हिंदो so that लोगों ने ये पुस्तक खरीद करके जानकारी करेंगे कि क्या क्या नया किया है, क्योंकि पिछले जो पुस्तकें हैं कई लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये जो नया पुस्तक है ये तो बॉम्बशेल लग रहा है मुझे। ये बॉम्बशेल है। उसका कारण ये है, उसमें इंफॉर्मेशन के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक लेयर नहीं है। बहुत इंफॉर्मेशन, हर चीज नई इंफॉर्मेशन है, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड ऑल दैट। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो एक नया का मतलब एक ये भी होता है, जैसे आप यूएस में हैं, आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से पहली फिल्म जो ड्रैकुला पे बनी थी ब्रैम स्टोकर के नॉवल पे 1912 में आ गई थी मेरे ख्याल से पहली फिल्म। उसके बाद में हर साल अमेरिका में एक फिल्म बनती है ड्रैकुला पे, सेम स्टोरी, लेकिन दिखाने का तरीका अलग,
और we know the entire story, we know this is what is going to happen, Jonathan Harker will go to that place and वो whatever, लेकिन दिखाने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, because with passage of time things are improving, तो insofar as the conclusions are concerned, वो 2001 में या 4 या 5 या 10 में हमारी इतनी कंप्लीट हमने इंफॉर्मेशन हमने वो ले ली थी कि हमारे कंक्लूजन में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन अंदर की जो डिटेल्स हैं वो बहुत नई आ गई हैं, और उसके अलावा उसको प्रेजेंट करने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल जो नेताजी डेथ मिस्ट्री को इतना बदनाम किया था इन लोगों ने पिछले जमाने में, अगर आप बात करें पहले की हमारे एक्टिव होने से पहले जो हमारा रोल किया है, तो उसमें ये था कि वो इतना ज्यादा बदनाम था कि कोई इसको हाई लेवल का बंदा इसको हाथ नहीं लगाता था, एंड इट वाज नॉट पार्ट ऑफ हाई सोसाइटी। वो मैंने ही आके पहली बार अमेरिका में लेक्चर देना शुरू किया कि कौन सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री में लेक्चर देगा, वो भी अमेरिका में जाकर के बॉस्टन में, और आप तो मुझे MIT यहाँ लोग जो सुन के हैरान हो जाते हैं कि MIT बॉस्टन में लेक्चर दिया सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री पे, कहाँ नेताजी डेथ मिस्ट्री, कहाँ MIT बॉस्टन। वो 1 घंटा तक लोग खड़ा हुए थे पूरा हॉल के सुनने के लिए। हाँ, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चेंज हम लेकर आए कि हमने इस जो हमारा बेसिक कंट्रीब्यूशन है कि हमने इसको मेन स्ट्रीम किया है पूरे केस को, उसमें करते करते बुक का हालत ये कि जब मैंने किताब लिखनी शुरू की थी, अपनी पहली किताब लिखी थी, तो कोई पब्लिशर इसको हाथ लगाने को राजी नहीं था, बिकॉज नोबडी विल टच दिस काइंड ऑफ इशू कंट्रोवर्शियल। आप जो भारत के अंदर जो 4-5 टॉप के पब्लिशर है, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बुक राइटिंग में कंटेंट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि पब्लिशर कौन है और ऑथर का प्रोफाइल कितना ज्यादा है। अगर वो बहुत मशहूर आदमी है और पब्लिशर बहुत अच्छा है तो किताबें लिखेंगी दबा करके, और किताब पढ़ता कोई नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, मिशेल ओबामा की जो वाइफ है उसका मैंने एग्जांपल हर जगह दी, वो किताब आपको पूरे कलकत्ता में मिल जाएगी बिकती हुई, अभी वो पूरे दिल्ली में आपको एयरपोर्ट में अभी मिल जाती है करके। तो एक बार मैंने, और मैं इसको बात को मैंने कई बार लोगों को पॉडकास्ट में सुनाया कि मैंने किसी को देखा था, उसको मैंने ये सवाल पूछा था कि तू ये किताब तो उठा रहा है, लेकिन ये बात बता कि कनेक्टिकट में और सिंसिनाटी में क्या फर्क है। अब उसे नहीं पता सिंसिनाटी किस चिड़िया का नाम है। मैंने कहा तेरे को अमेरिका के बारे में ABCD नहीं मालूम, तो ये किताब किस बात के लिए पढ़ रहा है, यू दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। तो लोग जो किताबें उठाते हैं वो पढ़ने के लिए नहीं उठाते, दे वांट टू एसोसिएट देमसेल्फ विद अ पर्टिकुलर वेरी फेमस ब्रांड। सलमान रश्दी का आई कैन टेल यू, आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, सैटेनिक वर्सेस का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता कि व्हाई मुस्लिम्स आर सो एंग्री विद सैटेनिक, बिकॉज़ सैटेनिक वर्सेस। आई अंडरस्टैंड, सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पोजीशन कि दे आर राइट, बिकॉज़ वो जो उसने इंप्यूट किया, बड़ा खतरनाक इंप्यूट किया, उनके रिलीजियस उस पे हिट किया उसने, उनके बिलीफ के ऊपर। इट्स वेरी बैड, इफ यू सी एज अ मुस्लिम इट्स वेरी बैड। बट लेकिन वो लोग वो एक वो होता है कि दिखाने के लिए वो ठीक है। मैं अब हमारे में क्या हो रहा है कि हम उस लेवल पे लेकर आए कि जहां कोई छोटा मोटा पब्लिशर इसको हाथ लगाने से डरता था, आज के पेंगुइन रैंडम हाउस जो वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है वो छाप रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने अगर ये किताब छापी है तो वो बेवकूफ नहीं है, कुछ सोच समझ के कंटेंट देके छापा होगा। वो तो आपने एक्सप्लेन ही किया कि दूसरा पब्लिशर लेते हैं किसी को। बट माय क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल you demystified the myth that there's a no plane crash, and it was actually pre-planned by Netaji himself, and then he moved on and he was planning to come back again with an army again, and the reasons why he was hiding, there are many reasons, and you have already explained in your books that he was a war criminal in their books, and India, especially Indian leaders including Nehru, was inimical to him. And if he came back to Bharat, what could have happened? He could have been handed over to them. And there are so many other issues were there. And then we find out through your research and some other research that in fact he was in Russia, and then after that he was in China. Then he comes to Bharat around 1955 or so. And then we also associate, so he was staying near Naimisharana and then near Ayodhya and Lucknow. The whole Ram Janmabhoomi came into a thing, new nationalism type of thing came, Ram Janmabhoomi. In all of this, we see a hand, a 71 word, Sikkim in inclusion of Sikkim in Bharat. We see an invisible hand in many of these things. And the new book you have published. যখন বই লিখছি কাজ করছি অনেকদিন, মানে লোকজনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, তো আমরা শুরু 20 বছর ধরে যে কাজটা করছি সেটা শুধু ফাইল পড়া না, আমার কনস্ট্যান্টলি লোকের সঙ্গে এনগেজ করে যাচ্ছি। ফলে লোকের সাইকোলজিটা একটু দেরিতে হলেও আমরা বুঝতে পেরেছি। আমার যেটা
খুব মানে অ্যাট আর্লি স্টেজেস আমি যেটা বুঝে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের রিডারশিপ সাইকোলজিকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আমরা শুধু এখানে ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার শুধু নয়, উই আর এনগেজিং উইথ দ্য রিডার্স এন্ড উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাইকোলজি, ওরা কিভাবে বই পড়ে। হ্যাঁ, শুরুতেও তুমি কিভাবে বলেছো বই পড়ে যে এই বইটা অ্যাকচুয়ালি মুখার্জি কমিশন যেহেতু ওটা পুরনো হয়ে গেছে, ক্যাবিনেট হেন তেন, তারা নতুন ইনফরমেশন চায়, এটাও তো একটা এফোর্ট তোমাদের যে সাধারণ মানুষ শুধু সেটা একটা অ্যাসপেক্ট, কিন্তু আর বড় বৃহত্তর অ্যাসপেক্ট সেটা হচ্ছে যে আনফরচুনেট, এই কথাটা শুনতে অনেকের খারাপ লাগবে, যে যখন বই পড়ে লোকে মন দিয়ে পড়ে না, মানে কনসিস্টেন্টলি মন দিয়ে আনইন্টারাপ্টেড কেউ বই পড়ে না। যখন সময় পেলাম 4 পাতা পড়লাম, যখন সময় পেলাম 10 পাতা পড়লাম, 2 পাতা পড়লাম, আবার 2 দিন পড়লাম না, 3 দিনের মাথায় আবার বইটা তুলে পড়তে শুরু করলাম। এই ধরনের বই ওইভাবে পড়া হয় না। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে যে, আই এম সরি টু ইউজ দিস ওয়ার্ড, যে আমাদের রিডারশিপ যারা বই পড়ে, এই ধরনের নন ফিকশন বই পড়তে যাচ্ছে, দে আর মেন্টালি লেজি। মেন্টালি লেজি কেন? যে আপনি যদি সবকিছু সাজিয়েও দেন অ্যান্ড আপনি তারপরে অ্যাজ অ্যান অথর আপনি কনক্লুশন বলছেন যে আমরা এই ফ্যাক্টস দেখেছি, আমাদের এই কনক্লুশন, তো দে আর মানে মেজরিটি অফ দ্য রিডার্স আর সো সিনিক্যাল, দে প্রেফার টু স্টে কনফিউজড। হ্যাঁ, এটা তো বলেছে, এটা আচ্ছা এটাও বলেছে, ওরা বলছে বা হয়নি, প্লেন ক্র্যাশ হয়নি, কি জানি বাবা কোনটা সত্যি, আমি তো বুঝতে পারছি না। তো কি হবে prefer to stay confused, remain confused and not take a conclusive stand. আমরা এইবারে এই বইটা লেখার সময় আমরা ঠিক করি যে if we have to demolish the entire case of the plane crash theory, the hoax, শুধু নতুন ইনফরমেশনই নয়, the way we explain it, the way we present it, we will leave no scope for any doubt or any confusion, any ambiguity. We are clear cut, মানে হাতুড়ি মারার মতো। Exactly, that's great work. And I remember Anuj, you showed me, आपने दिखाया था कि ताइवान गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर के उस दिन क्यों नहीं, उस समय कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल का रिकॉर्ड है। फिर भी वही ना कि अगेन दादा प्रॉब्लम इज नॉट ऐसा कि द कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द सेम थिंग अगर मैंने ना दिखाई होती और वो दिखाई होती खुशवंत सिंह ने, तो पूरे कंट्री में आग लग जाती हमारे देश के अंदर। वो मैटर वो नहीं करता। तो आपका जितना प्रोफाइल, जितने मशहूर, आप जितने बड़े हो, अब मान लीजिए कि सेम चीज व्हाट टू बी सेड बाय अ वेरी फेमस फिल्म एक्टर, सो पीपल विल गो, बिकॉज यहाँ लोग चलते हैं भेड़ चाल में कि कोई बड़ा आदमी बोल देगा। अब कल परसों मोदी जी जाकर के एक अपने हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने खुद कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया को टोपी एसोसिएट करते हैं। दिस इज अ फेक क्लेम। गांधी जी की टोपी है बहुत जबरदस्त, गांधी जी की बहुत फोटो टोपी के साथ में। अब लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो उनके श्रीमुख से निकलेगा वो स्टोरी बनेगी। तो मोदी जी तो हाईएस्ट लेवल पे, लेकिन इवन छोटे मोटे लेवल पे जितने बड़े बड़े यहाँ पे मतलब हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अगर बोल दें या कोई बड़ा आदमी बोल दे तो वो न्यूज बन जाती है, तो उसमें लोग चलते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम एक वो आ रही है, वो ये आपके वहां भी है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा फ्यूडल सोसाइटी है। अब इसका बेसिक जो प्रॉब्लम, जो बेसिक हमने जो कंट्रीब्यूशन किया कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, अब उसमें ये डिपेंड करेगा आप पढ़ोगे तो। अगर पढ़ेगा नहीं आदमी तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन हमने उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया है। इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉलीवुड फिल्म एंड अ हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, कि कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप फैक्ट को मार्शल कर रहे हैं, एंड समटाइम्स द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग इटसेल्फ मिक्स। तो ये जो किताब जो लिखा है, इसका एक बैकग्राउंड है। ये किताब क्यों लिखा हम लोगों ने, वो इसलिए लिखा था कि जैसे इसमें हमने हमारी एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट ने फाइलें पब्लिक करी, ठीक है। तो उसमें लास्ट जो आया कि मोदी जी ने 2016 में इन्होंने फाइलें पब्लिक करनी शुरू कर दी कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइलें, नेताजी की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। तो उन्होंने कोई 304 फाइल उन्होंने डाल दी। तो जब ये फाइल बाहर निकल के आई, तो उसके बाद 2 घटनाएं घटी इस देश के अंदर। पहली घटना ये कि जो लोग मीडिया में उन्होंने स्टोरियां प्लांट करनी शुरू कर दी कि अकॉर्डिंग टू दीज फाइल्स सुभाष चंद्र बोस डाइड इन अ प्लेन क्रैश। तो ये उन्होंने एक व्यू डालना शुरू कर दिया। होता क्या था, आप पंडित जी के जमाने का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट डाल रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड तो यही है, तो हम भी कह रहे हैं, हमने कब कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये नहीं था। और उसको प्रेसिडेंट किया कि कैबिनेट ने बोला कि मर गए, तो वो तो पहले से भी कैबिनेट ने कहा, वो तो आप रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा प्रॉब्लम ये हुई कि एक आप ये नोट करना
कि जो 18 अगस्त जो सुभाष बोस की जो कहते हैं डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन में जहां तक मुझे भी याद आ रहा है, कम से कम राहुल गांधी ने भी कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी उसने नहीं बोला कि नेताजी की पुण्यतिथि है, ठीक है। कांग्रेस की वेबसाइट में आज से 2-4 साल पहले तक जो उनकी वेबसाइट थी, वो बेचारे खुद डिस्प्यूट करते हैं सुभाष बोस की डेथ को लेकर के। अब अभी चेंज करिए, पिछली का मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ अभी तक दिखाने के लिए कि इवन कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट में वो नेताजी की डेथ को डिस्प्यूट कर रहे थे। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री कोई ट्वीट नहीं करता, कोई अपना फेसबुक पोस्ट नहीं डालता नेताजी की डेथ को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह जी कोई ट्वीट नहीं करते, कोई पोस्ट नहीं डालते, विदेश मंत्री कोई पोस्ट नहीं करते, रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कोई पोस्ट नहीं करता। तो जिन जिन लोगों को मालूम होगा फैक्ट के बारे में, जिनके पास में एक्सेस है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के आर्काइव्स का, उनमें से कोई भी आदमी ट्विटर पे जाकर के फेसबुक पे ये नहीं बोलता पिछले 2-3 साल से कि सुभाष बोस की आज डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन दादा सुनिए, सुन लो एक बार। लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं को ऐसी बीमारी हो गई है, ये स्टार्ट करने से अरुण जेटली, उसके बाद हमारे संबित पात्रा, फिर आपके हमारे ये महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जी, ये उठा करके सुभाष बोस को मारने पे तुल गए। सुबह उठे 18 अगस्त, पहले अरुण जेटली शुरू हुआ, उसके बाद में आपने ये हमारे जी संबित पात्रा जी कि आज तो नेताजी का डेथ एनिवर्सरी है। यार कांग्रेस नहीं बोल रही, राजनाथ सिंह सभी शुरू, हाँ सारे शुरू हो गए, नेताजी को मारने में तुल गए। तो एक हुआ ये था कि पिछले 2-3 साल में इस देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि आप लोग बहुत नेताजी को लेके बहुत चीखे मार रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। आप तो कहते हो सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ अयोध्या में थे, गुमनामी बाबा थे, यहाँ तो मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया मर गए प्लेन क्रैश में, मोदी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। वो करते 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 ये जब डिबेट चल रही थी तो 2017 में हम लोगों ने भी समहाउ हैड सम चांस, हम लोगों ने रिबर्टल दिए। तब उसमें उस जमाने में जो गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, जो नोडल मिनिस्ट्री है सुभाष बोस डेथ केस में, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये जो स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, ये स्टैंड ये पिछली गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लिया था, और अगर कोई नए इनपुट आएंगे तो हम गवर्नमेंट उसको देखेगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहानी क्लियर कर दी है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए थे, लेकिन ये स्टैंड कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लिया था और हम इसको रिव्यू करने को तैयार है। तब हमने ये काम किया कि ये जो किताब बोस रिसेप्शन है, कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया, जो 300 प्लस फाइलें मोदी जी ने निकाली वो पढ़ ली, उसके अलावा 1000 फाइल जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे निकली हमने वो सारी पढ़ ली। उससे पहले 1997 में यहाँ पे भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 990 फाइल निकाली थी, उसमें से कुछ 5 साल पहले वो सारी फाइलें पढ़ ली, समझिए। तो हमें और काम ही नहीं है। उसके अलावा बैठ करके हमने अमेरिका से डॉक्यूमेंट निकाले, उसके बाद हमने ताइवान से रिकॉर्ड निकाले, फिर उससे हमने इंग्लैंड से रिकॉर्ड निकाले जो सुभाष बोस की डेथ से जुड़े हुए। वो सारा पढ़ करके हमने इस किताब में डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी हैव यूज्ड द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फोटो दिखा के, কারণ কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে 50,000 পাতা পড়া তো সম্ভব নয়, কোনটা পড়বে আমরা তুলে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপরে একটা বোস পরিবার থেকে এবং কংগ্রেসের বামপন্থী দলগুলো থেকে শুরু হলো যে 1945-এ বিমান দুর্ঘটনার খবর আসার পরে যে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ যে তদন্ত করা হয়েছিল, সবাই বলেছিল যে নেতাজি মারা গেছে, এইটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো খবরটা। এটা একটা দুপাতার গ্রাফিক্স। হ্যাঁ, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, জাস্ট সবকটা এক নজরে আমরা সবকটা এনকোয়ারিকে এক জায়গায় এনে তাদের কনক্লুশন গুলো এখানে দিয়েছি। এবার লেট এনিবডি রিফিউট দিস, কারণ দিস ইজ অল ব্যাকড বাই অফিशियल गवर्नमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और इसमें हमने सारे रिकॉर्ड को सर्वे करके कंपेयर किया आपस में, बिकॉज वी हैव आल्सो कंपेयर्ड ना, बिकॉज आप ये मत बोलना यहाँ पे 1 नंबर के झूठे जो लोग हैं वो हमारे यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, तो इनको आप जब कंपेयर करते हैं अमेरिकन के साथ में या ताइवानीज के सामने, आपको यू कैन मेक आउट कि ये झूठ बोल रहा है यहाँ बैठ के, ये जो सत्यमेव जयते का नाम ले रहा है ये 1 नंबर का चोर है यहाँ पे। तो ये चोरों ने जो झूठ बोला है वो सारा हमने पूरी किताब में एक पन्ने में एक्सपोज किया, और आखिर में जाकर के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी सरकार को रिकमेंड किया है कि जो साल 2006 में कैबिनेट डिसीजन लिया था, इट वाज बेस्ड कंप्लीटली ऑन पॉलिटिक्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। वी कैन डिस्कस कि वो फैक्ट्स क्या है। आप मुखर्जी, उसमें ये था कि उसमें एक 2006 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो ये बोला कि प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो रूस की तरफ को चले गए थे। वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी विदाउट एनी, उन्होंने बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। उस रिपोर्ट को मोदी जी एक्सेप्ट कर ले, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने हमें भी बोला था कि मैं मिस्टर पुतिन से, राष्ट्रपति पुतिन से बात करूंगा इस केस के बारे में, वो उन्होंने अभी तक शायद नहीं करी है। तो रशिया से ये बात उठाएं इस मुद्दे को। और तीसरा ये कि इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड अभी तक बाहर नहीं आए हैं हमारे हिसाब से, ये निकाल दे।
तो ये हमने 3 रिकमेंडेशन दिया बिकॉज ये इसलिए बताने का तरीका था कि ये क्योंकि पिछले 2-3 साल में इस देश में एक नैरेटिव बन गया और उस नैरेटिव को बनवाने में भाजपा के लीडरों का हाथ है कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो हमें मजबूरी में बैक टू स्क्वायर वन जाना पड़ा। तो ये आपको ये दिखाना पड़ेगा और उसके अलावा वो जो और उसमें मेंशन कर दी कि जिसको गुमनामी हुआ भगवंत जी, जिसमें हमारा स्टैंड वही का वही है, वो पढ़ना है वो कैलेंडर में जाके पढ़ लो, किताब मार्केट में अवेलेबल है, हमने उसे वो वी स्टैंड बाय। बट एज ऑफ नाउ द प्रॉब्लम इज कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मोदी जी has supported the plane crash theory. Many BJP leaders have supported the plane crash theory. This has to be overturned because that is a hurdle. Once you clear that hurdle, take it from me. जिस दिन आप मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद गाड़ी अपने आप चल करके अपने आप आपकी अयोध्या में आ जाएगी। तो इसका कोई लीगल प्रोसेस हो सकता है कि दादा प्लीज दादा मेरी बात सुनिए दादा कोई लीगल आप मोबाइलाइज नहीं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। दादा मेरी बात सुनिए, ये सब कहने की बात है, लीगल कुछ नहीं होगा। लीगल में इतना पैसा लगता है यहाँ पे एक जो पहली बात, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था एक बार, ठीक है, 2005 में। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, इस वाले केस में या ऐसे केस में जहां सेंसिटिविटी हो, प्लीज कोर्ट में मत जाइए जब तक आपके पास में एक बहुत हाई फ्लाइंग लॉयर नहीं है, बहुत बड़े लेवल का। आपका केस को उठा के बाहर फेंक के मारेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब जो बड़ा वकील यहाँ पे जो है, उनकी जो फी होती है वो करोड़ों में होती है पर डे की, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया। मेरे को 2 करोड़ रुपया मैं पूरे जीवन भर नहीं कमा सकता, तो मेरे को फीस कौन देगा? यहाँ बैठ करके हमने, सुनिए ना दादा, सुनिए, ऐसा ना कि यहाँ पे हमने ट्विटर में अपील की थी, या मुझे 10 रुपए दो। लोग अगर 10 रुपए देने को तैयार नहीं है फेसबुक पे मेरे को, मैं यहाँ 2 करोड़ की फी कहां से लेकर आऊंगा? तो पॉइंट है कि वो ये लीगल फीगल कुछ नहीं होगा, हमारे पास में लड़ने का रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो हमने किताब में डाल दी है। पीपल शुड ऑर्गेनाइज, हेल्प अस इन डिसेमिनेटिंग। हमें काम ये करना है बेसिकली कि मोदी जी के हाथ पैर जोड़ करके उनके हाथ पैर पकड़ो और मोदी जी से रिक्वेस्ट करो कि मोदी जी फाइल पब्लिक करो, और ये कर लो बस, और हम कुछ नहीं कर सकते इसका।